Good morning, students. Here we are on the fourth lecture on classification of elements and periodic trends, and it is periodic properties part 2. I think we had discussed, it is part 3 I can say even, है ना? We had discussed in first part of periodic properties about atomic and ionic radius. In the second part we had discussed about ionization enthalpy and electron gain enthalpy. And now in this part, this is very important part. In this part we'll discuss about electronegativity and other periodic properties. So first we need to know what is electronegativity. Simply I can say, we know very well in whenever a covalent bond is formed, right? रिमेंबर, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तब क्या होता है, सबसे पहले मैं उस पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इन दैट केस वन एटम एंड अनदर एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स बिटवीन देम। आइडियल कंडीशन इट इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन बिटवीन देम, राइट? बट what happened? Simply I can say the one atom demanded more, right? So what will happen? This atom, one in these two atoms may attract this shared pair of electron toward itself. Obviously whenever we are talking about heteroatomic molecules, generally it happens because in heteroatomic molecules in heteroatomic molecules, one atom might have more nuclear charge as compared to other atom, and that atom which have more nuclear charge may attract shared pair electron toward itself also, right? So those having more that atom which have more nuclear charge, it attract this shared pair of electron toward itself, and this tendency of that atom, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट HCl इन दैट केस आई विल से कि क्लोरीन होगा, राइट? लेकिन इस में कोई भी हो सकता है, तो इन दिस केस दिस विल बी क्लोरीन, सो इट अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? So this is what I need to share with you. The qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself is called electronegativity. It is one more important thing which is very important to remember, that electronegativity of an element cannot be constant because it depends on that atoms which are bonded together. Those are bonded together by covalent bond, जहाँ से shared pair of electron को attract करना, उस पर ज़्यादातर depend करते हैं. So the electronegativity of one atom is one is for something, one is for one atom, it might be different for the other atom. So it all depends on the electronegativity of atoms, other atoms, nature of other atoms, all those things. So definitely it is not a measurable quantity, but a qualitative measure किया जा सकता है. Qualitative measure हम it means comparatively measure, comparative measure किया जा सकता है, कौन किसका ज़्यादा है and all that. So comparative measure has been done by different scientists. One named as that Mulliken. It is not given in your book, name is given but not other things are given. So Mulliken said, the Mulliken scale, electronegativity scale, Mulliken said that ionization energy in electron volt plus electron gain enthalpy in electron volt divided by 2, that would be इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम. यानी किसी एटम के आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए. एक और साइंटिस्ट पॉलिंग आए और उनका काफ़ी फेमस है, और ही सेड आयनाइजेशन एनर्जी
plus electron gain enthalpy divided by 2.8. तो ये मोलिकन स्केल था, ये पॉलिंग स्केल था, राइट? दोनों एक ही चीज बोलते थे, बट अंतर क्या हो जाएगा? पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू 5.6 ऑफ मोलिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? इस तरीके से, बट इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, सो आई जस्ट मेंशन हियर, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहते हैं। क्या किस तरीके से कोशिश की गई? एल्फ्रेड रोचो एक और स्केल दिया था, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर कॉन्सेंट्रेट किया गया था। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड इंटरप्रिटेशन। एंड एक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्वालिटेटिव मेजर की बात की गई थी, दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी, but we don't have all those energy in our syllabus, so we just need to know how can we done it, right? Kaise, how can we remember even, right? So the qualitative measure has been done, and on the basis of qualitative measure, Pauling scale is most famous, and in this scale you can see the electronegativity how vary. दिस इज रिलेटिव वैल्यूज, राइट? लिथियम के साथ फ्लोरीन होगा तो क्या कंडीशन होगी, बेरिलियम के साथ क्या होगा, रिलेटिव वैल्यूज आर देयर। सो फ्लोरीन विल बी कंसिडर्ड, फ्लोरीन इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यू कैन सी अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एंड डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, राइट? तो ये आप केवल इतने एलिमेंट्स के जो आपके स्क्रीन पर हैं, ये अगर याद रखें, इट इज वेरी इजी। फ्रॉम फ्लोरीन टू लिथियम यू कैन सी 0.5 का चेंज आएगा, फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम यहाँ 0.3 का चेंज आता है। केवल यहाँ से दोनों के बीच देखिए 0.4 का, यहाँ आपको 0.4 का चेंज देखने को मिलेगा, या 0.5 का, अदरवाइज सब जगह 0.3 का चेंज होगा। डाउन द ग्रुप कोई ऐसा जनरल नहीं है, बट जनरली डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, बट कोई ऐसा ट्रेंड नहीं जिससे हम इसे याद रख सकते। बट अलोंग द पीरियड हम 2 पीरियड के लिए इसे याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया। सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द रीजन आर सेम, because the electronegativity overall ultimately depends on the nuclear charge of the atoms. So again nuclear charge जैसे जैसे increase होगा, इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। So the same reason, the same criteria which we had discussed in the variation in electronegativity, electron gain enthalpy and ionization enthalpy is applicable for here also, right? Now the next is, so here we are, here we are with the important properties of important periodic trends या periodic properties. Here I am with the graph, जिससे आप इसे याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। You can see along the period electron gain enthalpy increase, ionization enthalpy increase, but atomic radius decrease. So atomic radius कहाँ होता है? Opposite direction में। तो and electronegativity and ionization enthalpy के बारे में you can see कि क्या और कंडीशन हो सकती है, बट आई एम हेयर विद some very important concept, metallic and non metallic character you need to remember. जैसे ही हम यहाँ से इस तरीके से जाते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, एक बात तो तय है, ये क्या बता रहा है वो समझ लीजिए। अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। दैट्स वाई जैसे हम इस साइड से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो ऑब्वियसली डायगोनली इट इज रिप्रेजेंटेड, बट रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लेफ्ट टू राइट पीरियड, आई एम अगेन शोइंग दैट पीरियोडिक टेबल टू यू एंड यू कैन इजिली चेक और एनालाइज एंड यू रिमेंबर प्लीज द इम्पॉर्टेंट इज कि आप जब यहाँ से यहाँ जाते हैं, यू कैन सी हेयर इज मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव, देन रिलेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड देन नॉन मेटल्स। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं, बट जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। When we are moving from along the period left to right, metallic property decreases, and down the group non-metallic properties decreases, right? So remember, along the period left to right,
metallic properties decreases, and the down the group metallic properties increases. And if we are talking about non-metallic properties, so along the period non-metallic properties increases, and down the group non-metallic properties decreases. So this diagram that I shared with you is very very important regarding this, right? So आप इसे बड़े आसानी से बाकी सारी चीज़ें याद रख सकते हैं, किसमें क्या चेंज होता है, या अपना खुद का डायग्राम बना, बट you need to remember all these trends, right? Here I am with the periodicity of valence or oxidation state. Valence या valency, generally valence electrons are considered, those outer shell electrons are considered as valence electron. किसी भी जब भी आप configuration लिखते हैं तो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं. या सिंपली आई कैन से, बिकॉज यू नो वेरी वेल इन डी सब शेल और एफ सब शेल देयर 2 or 3 shells are open, 3 shells are incompletely filled, penultimate shell, anti-penultimate shell, right? So we can say overall we can see the number of electrons in incompletely filled shells or shell is known as valence electrons, right? But what is the valency? Valency is valency is defined as the number of electrons used by an atom to form a chemical bond. Whatever, if it is ionic, so number of lose or gain electrons, or if it is covalent, the number of shared electrons. That would be what? Valency, right? Remember, now you are in class 11, you need to give a standard definition, right? Simply how can we find valency? अगर हम S और P block के elements की बात करें तो either the outer shell electrons, those are valence electrons, would be considered as valency, or 8 minus the outer shell electrons. For example, first group outer shell configuration is 2s1, so valency is 1, 2s2, so valency is 2. 13th group, the outer shell electrons is 3, so valency is 3. 14th group, the outer shell electron is 2s2, 2p2, so 4. यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज हम 8 में से माइनस नहीं करते इनके लिए क्योंकि ये मेटल्स होता है. आफ्टरवर्ड्स हम जो है इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल और 8 में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट भी करते हैं. सो वैलेंसी वुड बी 5. 15th group 2s2, 2p3, so 5 is valency, and 8 minus 5, 3 is also a valency. 6, so 6 and 2, 7, 1 and 7, and 0 and 8, right? So this would be the valency of that elements in S and P block. In other elements, you need to know how much electrons are used to form covalent bond, and those electrons are considered as valency. Even इन किस केस में भी इट इज गिवन हेयर ओनली, बट आगे के समय में आप केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे कि इससे कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, या कम और ज़्यादा इससे अलग भी वैलेंसी हो सकती है, राइट? सो इट इज द बेसिक थिंग दैट यू मस्ट नो, जो आपने क्लास 10th में उससे पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, तो जो आपको पता होना चाहिए ये बेसिक चीज़ें. बाकी एज आई सेड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, either if it is ionic bonding, in that case how many electrons gain or lose, if it is covalent bond how many electrons shared, so they would be considered as valency. If gain electron or lose electron, in that condition they are considered as electrovalency, and if the shared electron, that would be considered as covalency, right? So this is very important to know. We'll discuss about electrovalency and covalency in that chemical bonding chapter again. So remember that I share here with you, right? So this is very important. The second one is oxidation state. As I said, the charge state. It is based on the groups or atoms bonded with the atoms, right? In ionic compound, generally the charge over ion is considered as oxidation state,
राइट। बट इन कोवेलेंट कंपाउंड कोई चार्ज एज इट इज कोई आयन होता नहीं है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम चेक करते हैं, राइट। CCl4 है तो कार्बन के ऊपर +4 हो जाएगा एंड Cl के ऊपर -1 लाइक दिस, राइट। जो भी उनके ऊपर चार्ज हो सकता है उसके बेस पे। विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्यूरेटली इन रेडॉक्स चैप्टर। ओके, सो दिस इज अबाउट वैलेंसी एंड सिंपली आई कैन से कि वैलेंसी अलोंग द पीरियड चेंज, डाउन द ग्रुप रिमेन्स फिक्स्ड। अलोंग द पीरियड क्या हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। आई एम शेयरिंग हाउ इट इज डिफरेंट। लेट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आई एम टॉकिंग अबाउट। हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी क्या होगी, तो यू कैन सी हाइड्रोजन के साथ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट क्या बनाते हैं, LiH, देन सेकंड ग्रुप CaH2। सो हाइड्रोजन का वी कंसीडर्ड एज +1, वी कंसीडर्ड इस कंडीशन में हाइड्रोजन का जो है वो वैलेंसी 1 होता है, लिथियम का भी 1 होता है। बट इन दिस केस कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोजन का तो हमेशा 1 होता है। बट हेयर यू कैन सी इन 13th ग्रुप एल्यूमिनियम का 3 होता है, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, 3 हाइड्रोजन इज देयर, सो AlH3। हेयर कार्बन का इज 4 और हाइड्रोजन का 1, तो CH4। नाउ यू कैन सी it is decreasing now, so we can say commonly, it is very simplest way I am saying, along the period left to right in S or P block I can say only valency first increase maximum in 14th group and then decrease, but toward oxygen I can say toward oxygen valency continuously increase। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2 होती है, फर्स्ट ग्रुप की 1 होती है तो क्या लिख सकते हैं Li2, सेकेंड ग्रुप की 2 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है तो सिंपली MgO CaO। थर्ड ग्रुप की हम देखें तो थर्ड ग्रुप की 3 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, तो कैसे बनाएंगे कंपाउंड, थर्ड ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है, तो जिसकी जो वैलेंसी है उसके ऊपर लिख दीजिए, अगर आपको पता है प्लस माइनस तो वो लिख दीजिए, और ऑक्सीजन की थर्ड ग्रुप की 3 होती है और ऑक्सीजन की -2, तो इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर, और नहीं पता तो केवल सिंपली वो लिख दीजिए। तो थर्ड ग्रुप की 3 होती है तो Al2O3 बनेगा, राइट। फोर्थ ग्रुप की वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ ग्रुप, सो अगेन फोर्थ ग्रुप की 4 और ऑक्सीजन की 2 तो CO2 बनेगा। फिफ्थ ग्रुप के लिए इसी तरह से और भी अदर केसेस बन सकते हैं, तो यहाँ से हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर अलोंग द पीरियड ऑक्सीजन की जो वैलेंसी टुवर्ड ऑक्सीजन इंक्रीज होती है, राइट। बाकी हाइड्रोजन की मैक्सिमम होकर डिक्रीज। दिस इज वेरी जनरल ट्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत सारे एक्सेप्शंस, बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए, वी मस्ट नो दिस, राइट। सो दिस इज अबाउट वैलेंसी। हियर आई एम विद एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। जनरली it is observed that the properties of second period element is different from the properties of their respective group members, right। It is because of the small size of second, as I said, we had discussed in ionization energy, we had discussed in electron gain enthalpy, right। So this is due to the very small size. First is important, second period element is very small size. Second is obviously size ज्यादा होगा, चार्ज तो वही है, लिथियम के ऊपर और सोडियम के ऊपर चार्ज वही है, लेकिन साइज सोडियम का बड़ा है और लिथियम का छोटा है। चार्ज रेडियस रेशियो इट इज कॉल्ड, चार्ज डेंसिटी इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज चार्ज डेंसिटी, से एक टर्म और दिया जाता है, और चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी जो है उनके ऊपर ज्यादा होती है सेकेंड पीरियड एलिमेंट के ऊपर, राइट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होती है, ओके। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी, और ये हम कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट होता है। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, सो व्हाट विल हैपन, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। बाहर अगर चार्ज साइज के ऊपर चार्ज और रेडियस ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का भी चार्ज ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस तेजी से पुल करता है तो साइज छोटा हो जाता है। एंड विद द सेम रीजन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। एंड वन मोर थिंग, डी सब शेल नहीं होता। अगर आप देखें सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करें तो सेकेंड सेल में 2s और 2p होते हैं, थर्ड शेल में 3s 3p और 3d भी होता है।
इसके कारण से क्या होता है, whenever the bonding occurs in that case, मुझे पता है कि एग्जाम्पल पूरी तरह से आपको शायद ही समझ में आया, लेकिन आई एम शेयरिंग विद यू. जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक बोरॉन, राइट? सो बोरॉन कैन फॉर्म दैट BF3 ओनली, बट एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो AlF3 भी बना सकता है. दोनों ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन एक फ्लोरीन और जुड़ जाए तो बोरॉन, एक फ्लोरीन माइनस होता है ना, सो हम बाद में और अच्छे से देखेंगे. दिस विल माइट बी BF4, यानी 4 बॉन्डिंग हो गई, तो एक की कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4, राइट? AlF3 की बात करें तो AlF3 में और बॉन्डिंग हो सकती है और Al6 तक जा सकता है. 4 तो होता है, 6 हो सकता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी सब शेल. तो डी सब शेल होता है तो बाहर से जैसे F आके जुड़ना चाह रहा है मान लीजिए इनके साथ, तो ये BF3 में बोरॉन के पास 2s और 2p, टोटल मिला के 2s एंड 2p, तो 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4, राइट? तो ये 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं. लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 3s, 3p और 3d, तो अगर हम देखें तो 3s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 5 ऑर्बिटल, टोटल 8 होते हैं. लेकिन ये 8 बॉन्ड नहीं बना पाता क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पे आ जाएंगे तो रिपल्सन होने लगेगा. तो इन दैट केस मैक्सिमम इट में फॉर्म 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड तक बना सकता है. कुछ और नीचे के एटम्स, नीचे के ग्रुप्स में जाएंगे या अदर जो है वो एटम्स में, अदर जो है वो डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो वहां पर 7 तक बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है जनरली, राइट? तो ये डी सब शेल की एब्सेंस होती है तो बेचारे ये इनकी कोवेलेंसी मिनिमम, जनरली सेकेंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही हो सकती है, बट हायर जो है उसमें 6 तक हो सकती है. एक और खास बात है, जो पाई बॉन्ड बनाने का नेचर होता है वो ज्यादा अच्छा होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट में, तो वो पाई बॉन्ड बनाकर आपस में रह जाते हैं, तो इसलिए भी प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट हो जाती है बाकी लोग पाई बॉन्ड नहीं बना सकते. ठीक है, क्यों नहीं बना सकते इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में. एक बात जरूर आप समझ सकते हैं कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि साइज छोटा हो. अगर साइज बड़ा होगा तो पाई बॉन्ड अच्छा नहीं बनता, इतना आप समझ सकते हैं. तो ये सारे नेचर के कारण से डिफरेंट होता है. एक और चीज जो इसमें, तो एक बात तो समझ में आ गई कि एनोमलस प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, दीज आर द रीजन. अब एक और खास बात होती है डायगोनल प्रॉपर्टीज, डायगोनल रिलेशनशिप. जनरली क्या होता है, दैट वी नो वेरी वेल इन दिस केस ऑल्सो, दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इन दिस केस, कि जब आप इधर से इधर जाते हैं या इधर से इधर, एक देखिए आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है. लाइक हम ऐसा मान लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम इधर से इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, और इधर से इधर आएंगे तो डिक्रीज होगी. ऊपर की तरफ आएंगे तो इंक्रीज होगी, नीचे की तरफ आएंगे तो डिक्रीज होगी. सो जनरली व्हाट हैपेंड इन द सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, आई कैन से कि जो सेकंड पीरियड की प्रॉपर्टीज, सेकंड पीरियड के फर्स्ट मेंबर की जो सेकंड पीरियड मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड के मेंबर्स की प्रॉपर्टीज से काफी कुछ क्लोज हो जाती हैं, एक जैसी होने लगती है डायगोनली. यानी लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम जैसी होती हैं, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज कुछ एल्यूमिनियम से काफी मिलती जाती है, खासकर लिथियम और ये बेरिलियम की मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से काफी मिलती है. यू कैन सी हियर शेयर्ड सम एग्जांपल. मेटेलिक रेडियस यू कैन सी, लिथियम की रेडियस 152 होती है और मैग्नीशियम की 160, काफी क्लोज है. जबकि देखिए 186 और 111 अगर उनके अदर मेंबर्स को देखें, लिथियम और सोडियम का देखिए और बेरिलियम मैग्नीशियम, तो काफी क्लोज है. ऐसी काफी प्रॉपर्टीज होती है. जब हम एस ब्लॉक डिस्कस करेंगे तो हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं. चलिए, आयनिक रेडियस मतलब Li+ और Mg2+, देखिए काफी क्लोज है. जबकि यहाँ देखिए अगर लिथियम और सोडियम की बात करें तो, और बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें तो भी काफी डिफरेंट है, लेकिन ये डायगोनली काफी क्लोज है. बोरॉन और एल्यूमिनियम की अगर अपन बात करें तो बोरॉन एल्यूमिनियम के साइज में देखिए डिफरेंस, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम के साइज में. तो एक बात जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि डायगोनली प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, और ये फर्स्ट तो सेकेंड और थर्ड पीरियड के मेंबर्स के बीच में ही होता है. थर्ड पीरियड के मेंबर्स अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा. सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप.
and we'll discuss, we will elaborate, explore diagonal relationship when we discussed S block elements in class 11th, right? S block elements inorganic का पार्ट है, वहाँ पे हम शेयर करेंगे, तो हम इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, ओके? And here we are nature of oxides, hydrides and other properties that we have. So नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात कर चुके हैं हम, लेकिन मैं आपसे कुछ चीज़ें जरूर शेयर करना चाहता हूँ. द फर्स्ट इज that you know, I think that the metallic oxides are basic in nature. मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं. और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, राइट. सो हेयर यू कैन सी कि जैसे जैसे अलोंग द पीरियड हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज होता है और एसिडिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है. यू नो वेरी वेल. कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ. जैसे Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ देखिए SO3 वाटर में डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? H2SO4. सो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं. तो जब आप अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट नीड टू राइट इट बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग हियर. अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट basic nature of oxides decreases and acidic nature of oxides increases. First, one more important thing, along the period left to right, the nature, ionic nature of okay, remember that metallic oxides are ionic in nature and non-metallic oxides are covalent in nature. So we can say the ionic nature of oxides along the period left to right decreases and covalent nature increases. Remember it, right? Vice versa is true for down the group. Remember, down the group basic nature increase होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा. और आयनिक नेचर भी इंक्रीज होता है, चाहे वो P ब्लॉक हो चाहे वो S ब्लॉक हो. Remember, so very important point I have shared here. One is along the period basic nature decrease, acidic nature increase. The second one, ionic nature of oxide decrease, covalent nature of oxide increase. Down the group basic nature increase and ionic nature also increase. Let me discuss about hydrides. Along the period ionic nature of hydride decrease and covalent nature of hydride increase. Again it means ionic nature जो है hydride का वो दोनों ही केसेस में along the period increase हो रहा है या decrease हो रहा है, right? चाहे वो hydride का ionic nature हो या oxide का, along the period increase हो रहा है. Because it means very much clear it is. Remember, metal and non-metal combine होते हैं तब ionic bond बनते हैं, और जब metal combine होते हैं तब covalent bond बनते हैं, राइट. तो नीचे ऑक्साइड के केस में इट इज वेरी मच क्लियर. हाइड्रोजन के केसेस में हम कह सकते हैं व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड एंड व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. हाइड्रोजन का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हाइड्रोजन की स्टडी के लिए एक अलग ही चैप्टर रखा गया, दैट इज नेम्ड एज हाइड्रोजन, राइट. सो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट अलोंग द पीरियड जब भी हम जाते हैं तो आयनिक नेचर कम होता है, कोवेलेंट नेचर बढ़ता है, चाहे हम ऑक्साइड की बात करें चाहे हाइड्राइड की. एक और खास बात जो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सरप्राइजिंग. व्हाट इज द चार्ज ओवर हाइड्रोजन व्हेनेवर इट इज कंबाइंड विद LiH, NaH, KH और CaH2, B2S6 और AlH3? इट इज -1. रिमेंबर, बिकॉज दीज ऑल एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. सोडियम हमेशा प्लस होता है, तो सोडियम प्लस है तो दूसरा जो एटम है वो ऑब्वियसली माइनस होगा, प्लस तो हाइड्रोजन विल बी माइनस. बट जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे इन सारे केसेस में हाइड्रोजन प्लस होता है और नॉन मेटल्स माइनस होते हैं. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी हम ऐसा कह सकते हैं, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कैसा होता जाता है? डिक्रीज हो जाता है एलिमेंट्स का, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है, राइट. सो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो -1 शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होता है तो +1 शो करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट. जनरली ये सारे कंपाउंड कोवेलेंट हैं यहाँ के, और ये इनमें आयनिक नेचर ज्यादा होता है, और डाउन द ग्रुप आयनिक नेचर बढ़ता जाता है.
बाकी हम बात करेंगे आयनिक और कोवेलेंट के बारे में, बट एक एक लाइन जो मैंने यहाँ शेयर की है उसे जरूर लिखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर. थैंक यू फॉर